منصب سمجھ میں آئے گا اور جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے، جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ محترم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، حضور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمری سنجیر رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں جھم جھم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کی ڈالیاں نچھاور پیش کریں۔ آئیے بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا تھا کہ درود شریف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب بندہ کسی محفل میں بیٹھ کر یا تنہا بیٹھ کر کہیں بھی اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اور اس کے فرشتے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کی باتیں سننے کے لیے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ فائدہ حاصل کیجئے اور درود پڑھ کر اپنی گناہوں کی مغفرت کیجئے، اپنی گناہوں کی بخشش کیجئے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں ایک دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی ہے۔ درود شریف اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی بندہ درود شریف ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ تو آج ہم اور آپ اس اہم فضیلت سے پیچھے کیوں رہ جائیں؟ کہیں بھی مجلس ہوتی ہے، کوئی بھی مولانا ہو، کہیں نعت خواہ ہو، جب درود شریف پڑھواتے تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آواز سے خشوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اس کے مصطفیٰ سینے میں بسا کر کے سرکار غوث پاک کے صدقے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں جھم جھم کر درود شریف پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ غوث اعظم کے دربار میں آ جاتے ہیں، غوث اعظم کے جو دربار میں آ جاتے ہیں، مانگتے ہیں جو دعا رب سے وہی پاتے ہیں۔ غوث اعظم کے دربار میں جو آ جاتے ہیں، مانگتے ہیں جو دعا رب سے وہی پاتے ہیں۔ آپ کے در کی جنہیں نوکری مل جاتی ہے، آپ کے در کے جنہیں نوکری مل جاتی ہے، چھوڑ کے آپ کے در پھر کہاں جاتا ہے،
छोड़ के आपके दर फिर कहाँ जाता है। और मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। और सरभला कोई क्या जाने, सरभला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। और क्या तबे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या तबे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, जिसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों से फरमाता है, ए ईमान वालों, ये प्यारा लक़ब जो ईमान वालों है, ये प्यारा लक़ब उम्मत मुस्तफा को एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, चार मर्तबा नहीं, पांच मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 15 मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा नहीं, 30 मर्तबा नहीं, 50 मर्तबा नहीं, बल्कि 88 मर्तबा कुरान पाक में अता फरमाया है। ए ईमान वालों, ये प्यारा लक़ब कुरान पाक में 88 मर्तबा अता फरमाया है। जबकि पहली उम्मत की नबियों को इस लक़ब से खिताब किया जाता था। ये इज्जत गुलामाने मुस्तफा को मिली है। अल्लाह तबारक व तआला ने बराहे रास्त उनसे खिताब फरमाया है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुकद्दसा में दो खजानों का जिक्र फरमाया है, एक तो ईमान और दूसरा तकवा। ईमान और तकवा इसका जोड़ है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन, तहकीक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस जोड़ से बचने के लिए हुक्म होता है, वकुनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चे कौन है? यानी अल्लाह वाले की सोहबत और रिफाकत हासिल कर लो। किसी मर्द दरवेश का दामन थाम लो, किसी हक पुरुष के तरफ, किसी हक पुरुष के दरबार में लग जाओ, किसी हक पुरुष के कदमों से लिपट जाओ, किसी मर्द दरवेश के दामन थाम लो, किसी अल्लाह वाले के मकबूल बारगाह के हाथों में अपना हाथ देकर अपने खाना दिल को मुनव्वर कर लो, ताकि तुम्हारे ईमान और तकवा की हिफाजत हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ताकि तुम्हारे ईमान और तकवा की हिफाजत हो जाए, इसलिए हर नमाजी को नमाज के बाद ये दुआ मांगने की तरकीब की गई है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। या अल्लाह, तू हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए कुरान से पूछते हैं कि ईमान याफ्ता कौन लोग हैं जिनके नक्शे कदम पर चलने की पांचों वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी जाती हैं। तो कुरान बताता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन, वो गिरोह जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का इनाम हुआ, वो अंबिया इकराम, सिद्दीकीन और शुहदा इकराम और सालिहीन, यानी औलिया अल्लाह की जमात है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया, वो नबियों, सिद्दीक़ों और शुहदा इकराम और सालिहीन की जमात है। और हर मुसलमान अपनी नमाज में इनके सोहबत और नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने की दुआएं मांगते हैं। और कुछ लोग तो अल्लाह के वलियों की गुलामी की दुआएं मांगते हैं, और जो ही नमाज से फारिग हो जाते हैं, जो ही सलाम फेरते हैं, तो उसका इनकार कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज में जो मांगते हैं उसके बाद भी उसी दुआ पर कायम रहते हैं। और सुन्नी की इस दुआ की कबूलियत की दलील ये है कि इनके हाथों में औलिया अल्लाह का दामन है, इनके हाथों में गौस का दामन है, इनके हाथों में आला हज़रत का दामन है, इनके हाथों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन है, इनके हाथों में तमाम औलिया इकराम का दामन है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया,
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपने ईमान और तकवा की हिफाजत के लिए किसी हक पुरुष के कदमों से लिपट जाओ, किसी अल्लाह वाले की सोहबत और रिफाकत हासिल कर लो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, ताकि तुम्हारे ईमान और तकवा की हिफाजत हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, जब इंसान के नज़ा का वक्त करीब होता है, जब इंसान के वफात का वक्त करीब आ जाता है, तो शैतान पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करता है कि किस तरह से इस मरने वाले की ईमान को जाया किया जाए, ताकि इस ईमान के मरने वाले की ईमान को खत्म किया जाए, जबकि जो इस वक्त ईमान से फिर जाएगा वो फिर कभी नहीं लौटेगा। और जब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की वफात का वक्त करीब आया, नज़ा की हालत में शैतान हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के करीब आ गया और कहने लगा, ए राजी, तूने तो पूरी उम्र भर मुनाज़रे किए, क्या तू खुदा को पहचान देता है? तो क्या तू खुदा को जानता है? तो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, हाँ मैं खुदा को जानता हूँ, मैं खुदा को पहचानता हूँ, खुदा एक है। तो वो शैतान ने कहा कि इस पर दलील दीजिए। इमाम फखरुद्दीन राजी ने उस पर दलील पेश की। वो शैतान मौलिम था, वो शैतान खबीर जानकार था, वो आलिम था, उसने उस दलील की रद्द कर दी। आप फखरुद्दीन राजी ने दूसरी दलील पेश की, वो शैतान उसको भी रद्द कर दी। आपने तीसरी दलील पेश की, वो शैतान उसको भी खत्म कर दिया। आपने चौथी दलील पेश की, वो शैतान मखलूक उसको भी रद्द कर दिया। इसी तरह आपने 360 दलीलें पेश की, लेकिन वो शैतान एक एक करके सभी दलील को रद्द करता गया। और आप काफी परेशानी में सोच में पड़ गए कि आखिर अब क्या किया जाए, कि शैतान एक एक बात मेरी दलील को एक एक करके रद्द करता जा रहा है। आपके पीरे कामिल शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह कहीं दूर दराज के मकाम पर वज़ू फरमाते हुए फरमाते हैं, ए राज़ी, तुम ये क्यों नहीं कहते थे मैं खुदा को किसी बगैर दलील के मानता हूं। सुभान अल्लाह। गादराने मिल्लत इस्लामिया नज़ा की हालत में शैतान ने ईमान पर डाका डालने की कोशिश की और अपने पीरे मुर्शिद के सदके, अपने पीरे कामिल के सदके उस ईमान की हिफाजत हो गई। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वकुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये वली को देखना ये गोया कि अल्लाह को देखना है। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इतनी औलिया इकराम की फजीलत है। तो आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आपने इस वाक़े को सुना भी होगा कि सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल पुरानी डूबी हुई कश्ती को दरिया से बाहर निकाल दी। तो एक मर्तबा सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया के किनारे जा रहे थे, तो आपने देखा कि दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत जोरों कतार से रो रही है, जोरों कतार से रो रही है। आपसे उसका रोना देखा ना गया। उतने ही में आपके एक मुरीद आ गया। आपने पूछा कि ये बुढ़िया क्यों रो रही है? तो उस मुरीद ने आपसे अर्ज किया, इस बूढ़ी औरत का एक बेटा था जो इसके आंखों का तारा था। ये उससे बहुत बड़ी मोहब्बत रखती थी और इसने उसके लड़के की शादी कराई और बारात गया। और जब बारात वापस आ रहे थे तो दरिया में कश्ती डूब गई और उस बाराती में दूल्हा और दुल्हन और सारी बाराती डूब गई। तो सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस बुढ़िया की यह हालत सुनकर रहा ना गया और सरकार गौस पाक जोश में आ गए और सरकार गौस पाक ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमाया हाथ उठा करके, या अल्लाह, इस बुढ़िया की जो बेटा था वो बाराती से आ रहा था तो कश्ती डूब गई। सरकार गौस पाक ने दुआ फरमाई तो वो कश्ती जो डूब गई थी वो खुदा के हुक्म से सरकार गौस पाक की दुआ से वो बाराती वो कश्ती दरिया से बाहर आ गई। और सिर्फ बाराती, सिर्फ कश्ती ही नहीं, कश्ती में दूल्हा दुल्हन और सारी बाराती भी बाहर आ गई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यह सरकार गौस पाक की करामत, यह सरकार गौस पाक की फजीलत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए तो शायर क्या ही खूब कहता है कि एक सैयद साहब ने बयान किया था कि जिसने हुजूर सरकार गौस पाक का लंकर का एक दाना खा लिया, उसके 7 पुश्तों तक उसके गरीबी नहीं आ सकती। इसलिए तो शायर कहता है कि दिलों से दर्द के कांटे निकाल देते हैं,
दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। बस उनका एक नारा मुसीबत को टाल देता है। दिलों से दर्द के कांटा निकाल देता है। बस एक नारा उनके मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, जो एक पल में 12 साल डूबी हुई कश्ती निकाल देता है। जो एक पल में 12 साल डूबी हुई कश्ती निकाल देता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यह सरकार और गौसे पाक की फजलत, यह सरकार और गौसे पाक के बहुत सारे मौजज़े हैं, बहुत सारी करामतें हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज करने के लिए पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में आपने एक दरवेश को खास्ता हालत में देखा, एक फकीर को खास्ता हालत में देखा कि वो बैठा हुआ है। जो ही आप बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उस फकीर के करीब से गुजरे तो उस फकीर ने अर्ज किया, ए बायजीद कहाँ जा रहे हो? तो आपने इरशाद फरमाया, आपने जवाब दिया कि मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस फकीर ने फरमाया, ए बायजीद, वहां जाकर तुम सिर्फ काबे का तवाफ करोगे, तुम मेरा तवाफ कर लो, गोया के काबे का तवाफ कर लोगे। और ये याद रखो, मेरा तवाफ खाने काबा के तवाफ से अफजल है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर वो फकीर फरमाता है, ए बायजीद बुस्तामी, तुम वहां जाकर सिर्फ खुदा का घर देखोगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुदा उस घर को एक मर्तबा अपना घर कहा है, जबकि मुझे हर रोज 70 मर्तबा अपना घर कहता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को 70 मर्तबा दिन में याद करता है। चाहे बंदा अल्लाह तबारक व तआला को याद करे या ना करे, उसकी अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को 70 मर्तबा बंदे को याद करता है। और बंदा मौत को भूल बैठा है, आजकल मौत को भूल बैठा है। बहुत सारे आदमी है दुनिया की गफलतों में पड़े हुए हैं कि वो सोचते हैं कि हमको मौत आएगी या नहीं आएगी। मौत का उसको खौफ ही नहीं है कि हमको एक दिन मरना भी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप ये याद रखिए, आप भले मौत को याद करें या ना करें, बल्कि मौत 70 मर्तबा हर रोज आपको याद करती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हदीस मिशकात की हदीस है कि सरकार हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स किबला की रुख करके भूखा था, और फिर आपने देखा कि वही शख्स जमात कराया, वही शख्स नमाज पढ़ाया। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जो ही वो लोग नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, क्योंकि जो शख्स तुम्हारी जमात कराया है वो किबला की तरफ रुख करके धोखा था, इसी वजह से तुम्हारी नमाज नहीं हुई। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचिए, अगर कोई इंसान किबला की तरफ रुख करके धोखे, उस इमाम के पीछे नमाज जायज नहीं। आप सोचिए, जो बुजुर्ग हस्तियां खाने काबा से अफजल है, जो बुजुर्ग हस्तियां खाने काबा से बढ़कर है, जो उसकी बेअदबी करते हैं, जो उनकी बेहुरमती करते हैं, जो औलिया अल्लाह के कहने के बजाय मिन दुनिल्लाह कहते हैं, तो बताइए उस इमाम के पीछे कैसे नमाज पढ़ सकती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए अब ये अल्लाह के पूरे करीबी बन जाए, और जो औलिया अल्लाह के करीबी बनना चाहते हैं, औलिया अल्लाह के करीबी बन करके अपने ईमान और तकवा की हिफाजत कीजिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम आजकल हमारा दौर ये है कि हम सबको मानते हैं, हम फला मज़ार को मानते हैं, फला मज़ार के फला बाबा है उनको मानते हैं, फला पीर को मानते हैं, फला को मानते हैं, लेकिन आप याद रखिए, उनका मानना नहीं हुआ जब तक कि आपकी उनके हुक्म को बजा ना लाए। वो जो हुक्म देते हैं उनको बजा ना लाए, उनको ना कर ले, तब तक उनका फरमा बरदार नहीं है। आप तो सोचते हैं कि हम गौस के मानने वाले हैं, लेकिन गौस का फरमान बजा लाते हैं। गौस आज़म ने अपनी जिंदगी में नमाज नहीं छोड़ी, और आज हमारा हाल ये है कि हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। तो कैसे हम गौस आज़म के हुक्म को बजा लाए? गौस आज़म की महफिल में बैठे हुए हैं, गौस आज़म की मजलिस में बैठे हुए हैं, तो आज अपने दिल में इरादा करके जाए कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ना है, आज के बाद नमाज को कज़ा नहीं करना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप ईमान पर खात्मे की बहुत दुआ करते हैं। सरकार सैयद आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें पता है ईमान पर खात्मा कितना नाजुक है? सरकार वैसे पाक फरमाते हैं, जो लोग रुकू करते वक्त अपनी पीठ को सही तौर पर सीधा नहीं करते, मुझे डर है कि जब वो मरेंगे तो काफिर होकर के मरेंगे। अभी मैं नमाज की बात नहीं करता हूँ, नमाज छोड़ने वालों की भी बात नहीं करता हूँ। जो नमाज पढ़ता है और रुकू को सही तौर पर अदा नहीं करता है,
मुझे डर है कि जब वो मरेंगे तो कुफ्र पर मरेंगे। जो लोग आजान को सुनकर आजान का जवाब नहीं देते हैं बल्कि आजान के वक्त दुनिया की बातें करते हैं, डर है कि मरेंगे तो कुफ्र पर मरेंगे। जरा सोचिए, जब आजान होती है तो क्या हम और आप आजान का ख्याल रखते हैं? नहीं। आजान के वक्त भी हम अपनी गुफ्तगू में मशगूल रहते हैं, दुनिया की बातों में उलझे हुए रहते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो आजान के वक्त आजान का जवाब न दे, दुनिया की बातें करे, डर है कि मरेंगे तो कुफ्र पर मरेंगे। जो अपने माँ बाप की बेअदबी करते हैं, डर है कि मरेंगे तो कुफ्र पर मरेंगे। जो लोग अल्लाह वाले की बेअदबी करते हैं, उलमाए रब्बानीयीन की तौहीन करते हैं, मौलवियों को हल्का जानकर उनका मजाक उड़ाते हैं, डर है कि मरेंगे तो कुफ्र पर मरेंगे। बहुत सारी अलामतें हैं बुरे खात्मे की, जिससे बुरे खात्मे का अंदेशा है, जिससे बुरा खात्मा हो सकता है। अल्लाह वाले की बेअदबी करना, उलमाए रब्बानीयीन की तौहीन करना, मौलवियों को हल्का जानकर उनका मजाक उड़ाना, माँ बाप की बेअदबी करना, ये वो सारी वजूहातें हैं जिससे बुरे खात्मे का अंदेशा है, जिससे बुरा खात्मा हो सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए अच्छे खात्मे की दुआ करो और ईमान पर खात्मे की दुआ करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और सरकार वहां से बात फरमाते हैं, जो लोग ईमान पर खात्मे की दुआ नहीं करते, मुझे डर है कि वो काफिर होकर के मरेगा। इसलिए फिक्र करो ईमान पर खात्मे की और उन अमाल से बचो जिससे बुरे खात्मे का अंदेशा है। और जो चीज़ बुरे खात्मे की तरफ ले जाती है वह है नमाज का तर्क करना, नमाज का छोड़ना। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। हम और आप आसान समझिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज का छोड़ना ये बुरे खात्मे की तरफ ले जाती है। नमाज का छोड़ना ये बुरे खात्मे की तरफ ले जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दिनों सरकार वैसे बात फरमाते हैं, जो लोग ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करते, मुझे डर है कि वो काफिर होकर के मरेगा। और जो चीज कुफ्र की तरफ ले जाती है वो है नमाज का तर्क करना, नमाज का छोड़ना। ये बड़ी खतरनाक चीज है। आज इतनी खूबसूरत मस्जिदें बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। अल्लाह के घर से ज्यादा किसका घर इस बात का हकदार है कि वो खूबसूरत बने, इसलिए अच्छे से अच्छा बनाओ। लेकिन रंग और रोगन मस्जिद की जीनत नहीं है, झूमर और खूबसूरत महराब मस्जिद की जीनत नहीं है, बल्कि मस्जिद की जीनत तो नमाजियों के सजदे में है। हमने एक मस्जिद ऐसी भी देखी है तस्वुरात में, जिसकी छत खजूर के पत्तों की है, जिसकी दीवारें मिट्टी की होती है, बारिश होती है तो जमीन पर कीचड़ होता है, पेशानियों पर लग जाती है, लेकिन उसके नमाजी ऐसे तो खुदा की कसम अब वैसे नमाजी नजर ही नहीं आते। उसी मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं, जिसका इमाम इमामुल अंबिया थे, जिसका मुक्तदी सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद सईद, अबू हुरैरा, जनाब ज़ैद और जनाब अनस जैसे लोग उस मस्जिद के मुसल्लियान थे। आप बताएं तो सही, उनके सजदों का आलम क्या था, उनकी इबादतों का आलम क्या था। और आज मुसलमान नमाज से दूरी, गफलत पर गफलत। अल्लाह अकबर। अगर किसी मुसलमान से ये पूछ लिया जाए, हाँ वो मर्द हो या औरत, तो अपने बड़े बड़े बहाने और अपनी बुरी बेबाकी से कहता है, बाबू जितना वक्त मिलता है पढ़ लेता हूँ। वाह वाह, तुमको ये किसने कह दिया कि जितना वक्त मिले उसके मुताबिक पढ़ो? अगर जितना वक्त मिले उसके मुताबिक पढ़ो, ये नहीं कि जितना वक्त मिले उसके मुताबिक पढ़ो, बल्कि तुम नमाज तो कामों को छोड़ करके पढ़ो। अगर नमाज को कामों को छोड़ करके पढ़ो और दुकानों को बंद करके पढ़ो, इसलिए कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो अपने कारोबार को छोड़ दिया करो, अपनी दुकानों को बंद कर दिया करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और पहले के सहाबी थे, जब नमाज का वक्त आ जाया करते थे तो अपना कारोबार को छोड़ दिया करते थे और नमाज की तैयारियां करते थे। और कितने लोग हैं जो इस तरह नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के रसूल इरशाद फरमाता है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, गोया कि वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये वो नमाज है जिसको सहाबा ने मैदान जंग में भी नहीं छोड़ा। और आज मुसलमान साए के नीचे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, आज मुसलमान पंखों के नीचे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, आज मुसलमान कूलर के नीचे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, आज मुसलमान एसी के नीचे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। ना मर्दों में नमाज पढ़ने का शौक रहा, ना औरतों में नमाज पढ़ने का शौक रहा। इसीलिए तो आप देखिए कि दुनिया भी बर्बाद हो रही है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाइए, घरों से रहमत उठ गई, घरों से बरकत उठ गई, दिलों के अंदर चैन नहीं, दिलों के अंदर इत्मीनान नहीं, दिलों के अंदर करार नहीं, दिलों के अंदर सुकून नहीं। किस वजह से? गुनाहों की वजह से, गुनाहों की सबब से, गुनाहों की वजह से दिलों का चैन गया, गुनाहों की वजह से दिलों का करार गया, गुनाहों की वजह से दिलों का इत्मीनान गया। अब दिलों का करार भी कभी गानों पर तलाश करता है, कभी जुए के अड्डे पर तलाश करता है, कभी शराब की महफिल पर तलाश करता है, कभी कहीं तलाश करता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, अपने बेकरार दिल का इलाज गुनाहों के अड्डे पर ढूंढने वालों, वो रसूल जो बेचैन दिलों का चैन है, जो बेकरार दिलों का करार है, जब वो बेचैन होते तो खुद फरमाते, ए बिलाल तुम आओ, आजान करो, मैं नमाज पढ़ूंगा।
को नमाज में तलाश फरमाए, नमाज पढ़ करके अपने दिल को सुकून दिए। और आज मुसलमान मस्जिद से दूर सुकून तलाश कर रहा है, आज मुसलमान मस्जिद से दूर सुकून तलाश कर रहा है, गुनाह के आटे पर सुकून तलाश कर रहा है। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह के अलावा तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिल सकता। इसीलिए तो शायर क्या है वो कहता है कि पढ़ नमाज़े पंजगाना, पढ़ नमाज़े पंजगाना, ना कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत वरना जहन्नम होगा ठिकाना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में और आपके सुनने में अगर किसी किस्म की गलती खामी हो तो मैं तौबा करता हूँ और आप लोग भी तौबा कर लें। इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।